Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now today we are going to have an in-depth study. आज बहुत ही एक गहरा हम मनन करने वाले हैं The topic for today is holiness. और आज के प्रचार का शीर्षक है पवित्रता। Now many people say कई लोग कहते हैं we cannot live just like that. हम ऐसे ही नहीं जी सकते, We must live a holy life. हमें एक पवित्र जीवन बिताना है। Some other people say कुछ और यूं कहते हैं we are called to live a holy life. हमें बुलाया गया एक पवित्र जीवन बिताने के लिए। But what people don't tell is लेकिन क्या बात वह नहीं कहते हैं, what is holiness, how to live holy. पवित्रता क्या है और कैसे एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए। We have been listening for years together. हम कितने ही वर्षों से सुनते आ रहे हैं। Now, what we fail to understand or what people are not telling us clearly, और एक बात जो लोग स्पष्ट से नहीं बता पाते हैं, what is holiness? पवित्रता क्या है, How to be holy? कैसे हमें पवित्र बनना है। Without telling this, इस बात को बिना बताए now everybody says we are called to lead a holy life. सब लोग यही बात कहते हैं कि हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया गया। Let us understand what is holiness. अभी हम समझेंगे पवित्रता क्या है। Holiness, the Hebrew word is kodesh. और पवित्रता का इब्रानी शब्द है कोदेश। You can use K or you can use Q. That is up to you. आप के अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं या क्यू उसका अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं। Kodesh. Kodesh Kodesh. कोदेश। Now it means set apart. इसका मतलब है अलग किया जाना। Now if suppose I am speaking to a group of people, अगर मैं एक लोगों के समूह से मैं कुछ बात कर रहा हूँ, I am telling them, मैं उनसे कहता हूँ all the children from 13 to 15 years come and stand in this side. 13 से 15 वर्ष के आयु के बच्चे एक तरफ आके खड़े हो जाओ। If they stand there, अगर वहां से खड़े हो जाते हैं अलग, what I have made them? मैंने उन्हें क्या बनाया है? I have made them Kodesh. मैंने उन्हें कोदेश बनाया है। That means I have made them holy. इसका मतलब मैंने उन्हें पवित्र बनाया है। How many of you are understanding this? कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? Set apart. अलग किया जाना। I'll give you another one example. एक और उदाहरण दूंगा। I am bringing 2 mugs. मैं 2 मग्स लेकर आता हूँ। Okay. I am saying और मैं ये कहता हूँ 1 mug you keep in front on top of the water can. एक मग को उस पानी के कैन के ऊपर रखो। That is used for drinking water. और वह पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। Another 1 mug you go and keep in the toilet. और दूसरे मग को जाकर तुम बाथरूम में रख दो। That is to you for people to use during toilet. और वह बाथरूम में इस्तेमाल किया जाएगा। So when I have kept the mug on the water can, I have made that mug holy for drinking water. और जब मैंने एक मग को उस कैन के पानी के कैन के ऊपर रखा है, मैंने उसे अलग किया, उसे पवित्र बनाया कि पानी पीने के लिए उपयोग किया जाए। When I have kept the another 1 mug in the toilet, और जब मैंने दूसरे मग को टॉयलेट में रख दिया, I have made that mug also holy to be used in the toilet. मैंने उसे भी पवित्र बनाया है कि बाथरूम में इस्तेमाल किया जाए। Is it clear? क्या ये साफ स्पष्ट है आपके लिए? So don't think, oh, this is drinking water. This is toilet. How toilet can be holy? Don't think like ये that. मत सोचो ये तो बाथरूम में रखा गया, ये कैसे पवित्र हो सकता है? It simply means set apart. बस इतना उसका अर्थ है, अलग किया जाना, उसको विभाजित किया जाना। So we are people who are set apart people. हम ऐसे लोग हैं जो अलग किए गए हैं। Without understanding the Bible, what the Bible says, और बिना ये समझे कि बाइबल क्या कहती है, many people want to project holiness to outside world. कई लोग बाहर से
पवित्रता को प्रकट करना चाहते हैं अपने ही तरीके से। How they do that? कैसे करते हैं? They want to wear white shirt or white pant. और सफेद शर्ट या सफेद पैंट पहनते हैं। They want to remove the jewels. Some people want to remove the jewels, say, I am holy. कुछ लोग जेवर निकाल कर कहना चाहते हैं कि मैं पवित्र हूँ। Some people want to do fully shaving, कुछ लोग पूरी तरह से शेव कर लेते हैं, say, I am holy. कहते हैं मैं पवित्र हूँ। Recently, I saw one video. और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा। One preacher is telling, एक प्रचारक यूं कह रहा था, buy some salt and come, और कुछ नमक खरीद कर लाओ, put it on the ground, उसे जमीन पर डालो, kneel down on top of that, उसके ऊपर घुटनों को टेको and pray now, और अभी प्रार्थना करो, and God will listen. परमेश्वर सुनेंगे। Now, this type of absolute nonsense people try to do, saying something God will like. और ऐसे कुछ फिजूल बातों को कहकर ये परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, who can give explanation for holiness कौन पवित्रता की व्याख्या दे सकता है? except God? Nobody can say what is holy. और परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कह सकता उसका सही अर्थ। Let us turn our Bible to 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to 7. पहले थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय 1 से 7 हम लेंगे। निदान, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Paul is speaking to Thessalonians. और पौलुस यहाँ थिस्सलुनीकियों से बात कर रहे हैं। What he says in verse 1, पहले पद में क्या कहते हैं? we instructed you how to live in order to please God. हमने तुम्हें योग्य चाल चलने और परमेश्वर को प्रसन्न करना सिखाया है। Already we told you. पहले से हम आपको बता चुके हैं। What Paul told already? पौलुस ने पहले से क्या कह दिया था? That is not there. वह नहीं लिखा यहाँ पर। Paul has already told to Thessalonians, पौलुस पहले से थिस्सलुनीकियों से कह चुके हैं, we told you how to live to please God. हमने तुम्हें सिखाया है कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना। Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do that more and more. और हम तुम्हें ये बताते हैं कि वैसा ही और भी बढ़ते जाओ। And he is telling, for you know what instruction we gave you by the authority of Jesus Christ. और ये भी कहते हैं तुम जानते हो हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। Now the question is, अभी सवाल ये है, Paul has already taught something to the Thessalonians what will please God. और थिस्सलुनीकियों को पहले से पौलुस सिखा चुके हैं कि कौन सी बात परमेश्वर को प्रसन्न करेगी। Now, अभी from where did Paul say that? कहां से पौलुस ने वो कहा था? Now, this answer we need to understand. ये बात को हमें स्पष्ट समझना है। Did he say anything from a specific place? क्या किसी विशेष स्थान से उन्होंने ये बात कही, Or he told out of his own mind? या अपने ही मन से यूं ही कह दिया?
what do you think is the answer? आप क्या सोचते हैं इसका उत्तर He क्या है? had some reference. क्या कोई रेफरेंस थी जिसे He देखकर had some book. क्या कोई और पुस्तक थी उनके पास? Now I am sitting and preaching from here. मैं यहाँ पर बैठ के प्रचार करता हूँ अभी। If I tell something out of my own idea, you will listen? क्या मैं अगर अपने ही मन से मैं कुछ बात आपको सिखाऊं तो क्या आप सुनने को तैयार होंगे? Suppose I am telling you, अगर मैं आपसे यूं कहता हूँ you have to get up at 4 o'clock in the morning. तुम्हें सुबह 4 बजे उठना है, You need to have only black tea or black coffee. सिर्फ तुम्हें काली चाय या काली कॉफी पीनी है। This is my idea. ये मेरी आइडिया है, मेरे मन की सोच है। You better wear green shirt and green pant. और तुम हरे रंग की शर्ट, हरे रंग की पैंट ही पहनो। You are asking why you are saying all this. आप पूछेंगे आप सब ये सब क्यों कह रहे हैं? I am telling this is my idea. मैं कहता हूँ कि ये मेरी सोच है। You will listen? क्या आप सुनेंगे? Say yes or no. हाँ या ना? No, if I am going to say my idea, you will not listen. अगर मैं कहूंगा कि ये मेरे आइडिया है तो आप नहीं सुनेंगे। If I am going to say, अगर मैं यूं कहूँ, now I am having one book here. यहाँ पर एक पुस्तक है मेरे पास, It's written by one person named William Donald. विलियम डोनाल्ड करके एक मनुष्य ने लिखा Okay, है। that is a foreign author. We leave it. I will tell you some name Indian author. मैं कोई भारतीय लेखक को कहूंगा। And this book is written by Siddha Raman. और सिद्धा रामन ने ये पुस्तक लिखी है। And according to this book, इस पुस्तक के मुताबिक chapter 5, और 5वें अध्याय के मुताबिक he has told don't tell lies. उन्होंने कहा है कि झूठ मत बोलो। So as per Siddha Raman, you should not tell lies. और सिद्धा रामन के मुताबिक तुम्हें झूठ नहीं कहना है। You will listen? क्या आप सुनेंगे? Now what you will say, आप क्या कहेंगे? we are not here come to listen to some nonsense. हम यहाँ पर कोई भी ऐसे फिजूल बातों को सुनने नहीं आए। We have come here so that you will teach the word of God that we will learn. हम यहाँ पर आए हैं कि प्रभु का वचन आप सिखाएं और हम उसे सीखें। You tell your own idea. आप अगर अपना ही आइडिया बोलेंगे You tell some nonsense book. और किसी और पुस्तक का जिक्र आप करते हैं, We are not come to listen to that. हम यहाँ पर उससे सुनने के लिए नहीं आए। Right or wrong? सही या गलत? Yes. Now if Paul is telling the people अगर पौलुस लोगों से कहते हैं his own idea, अपना ही आइडिया बताएंगे, people are not ready to listen. लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। If Paul is telling from some other quotation, अगर पौलुस किसी और जगह से वो कुछ वचन बताते, people will not listen. लोग नहीं सुनेंगे। What will people listen? लोग किस बात को सुनेंगे? If Paul is preaching from the Torah, then only people will listen. अगर पौलुस तोरा से कुछ बताएंगे तभी लोग मानेंगे। Now what is Paul telling? पौलुस क्या कहते हैं? Verse 1. पहला पद, Now we have instructed you how to live and which will please God. और हमने तुम्हें हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सिखाया है। From where did Paul speak? कहाँ से पौलुस ने ये वचन बताए? Do you all agree he spoke from the Torah? क्या आप सब मानते हैं कि उन्होंने तोरा से ही सिखाया? Yes. हाँ। Glory be to God. Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। Okay. Now Paul has spoken from the Torah. You have understood that. और पौलुस ने तोरा से सिखाया, आप समझ गए। Now there is a question. अभी एक सवाल उठता है, Is there a list of items I can find out how I will be holy? और क्या ऐसी कोई सूची है जहां पर लिखा है कि कैसे कैसे मैं पवित्र रह सकता हूँ? Now we need to get that list. हमें वह सूची चाहिए। If we get that list, अगर वह सूची हमें मिल जाए, we can be sure I am holy. हम निश्चित हो सकते हैं कि मैं पवित्र हूँ। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now it is more clear when Peter is speaking. और जब पतरस यही बात कहते हैं तो और भी स्पष्ट हो जाता है। So I am now switching to 1 Peter अभी मैं पहले पतरस की पुस्तक पर जाऊंगा। chapter 1 उसका पहला अध्याय verse 13 to 17. उसका 13 से 17वां पद।
First Peter chapter 1 verse 13 to 17. पहले पत्रस की पुस्तक पहला अध्याय उसका 13 से 17 हम पढ़ेंगे। Yeah. इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। Okay, glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now what does Peter say? यहाँ पर पतरस क्या कहते हैं? As obedient children, not conforming yourself to the former lust, as in your ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy. और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। Now, what is the first basic step of holiness? पहले पवित्रता का पहली सीढ़ी कौन सी है? Verse 14. 14वां जो पद है, As obedient children. आज्ञाकारी बालकों के समान। What is the basic for holiness? और पहला पवित्रता का आधार क्या होता है? First, you should obey to the Torah. पहले तुम्हें तोरा का आज्ञा पालन करना है। Your mindset, if your mindset is I will not obey Torah, you are not a holy person first. अगर आपकी मानसिकता ऐसी है कि मैं तोरा का पालन नहीं करूंगा तो आप पवित्र नहीं हैं। Now we come to verse 16. अभी 16 पद पर आते हैं। What does verse 16 say? 16 में क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Where लिखा है? कहाँ पर लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ? Who will answer me? Where? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कौन इसका उत्तर देगा? Yes, Sister Bhagya is going to give us the answer. Yes, sister. Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor जी। Praise the Lord, sister. तोरा में ही लिखा है इस। Very good answer. बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। So now how to be holy? कैसे पवित्र बनना है? Now Peter is telling, check the Torah. पतरस कहता है कि तोरा को जांच करो तुम। Now if somebody is telling, no, I only follow the Old Testament and I will only follow the New Testament. अगर कोई कहता है कि नहीं मैं तो सिर्फ नया नियम ही पढ़ूंगा, then what to do with the people? तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? Peter himself is telling, और पतरस खुद कहते हैं, refer Torah. तुम तोरा की खोज करो। Thank you, Gansham. Thank you, Krista Bag. All are giving me references. सब लोग मुझे वचन का रेफरेंस बता रहे हैं। धन्यवाद आपका। Thank you so much for your kindness. घनश्याम और ब्रदर क्रिस्टा भाग, आपके दया के लिए धन्यवाद। Turn your Bible to Leviticus chapter 19 verse 1 and 2. लय व्यवस्था का 19 अध्याय उसका 1 और 2 हम पढ़ेंगे। Yes. लय व्यवस्था का 19 उसका 1 और 2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। Now God is telling people, अभी यहोवा लोगों से कहते हैं, you be holy because I am holy. तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Now what will be the next question of the people? और लोगों का अगला सवाल क्या होगा? Lord, okay, tell us how to be holy. ठीक है परमेश्वर, आप हमें बताइए कैसे पवित्र बनना है हमें। Very good question. बहुत अच्छा सवाल। Now in chapter 19, full chapter he is telling how to be holy. लय व्यवस्था के 19 अध्याय में, पूरे अध्याय में यही बताते हैं परमेश्वर
कैसे पवित्र बनना है। Okay, let me go with step 1. और पहले कदम पर हम जाएंगे। Verse 3. तीसरा पद, Every one of you should revere your father and mother तुम अपनी अपनी माता और अपने पिता का भय मानना and follow Shabbat. और मेरे विश्राम दिनों को मानना। How you are holy? कैसे तुम पवित्र हो? If you follow Shabbat, you are holy. अगर तुम शब्बात का पालन करो तुम पवित्र हो। If you don't follow Shabbat, अगर तुम शब्बात का पालन नहीं करते, what is the answer? उसका उत्तर क्या है? What is the answer? क्या उत्तर है उसका? Yeah, my daughter wants to answer me. Okay. बेटी उत्तर देना चाहती Sagarika, है। yes, tell me. I am not If, holy. tell loudly. I am not holy. If I don't follow Shabbat, अगर मैं शब्द का पालन नहीं करता, this I am not telling Baba, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, because now many places they are telling, कई जगह पर यूं कहते no, हैं। Christy Paul is telling you follow Shabbat. Christy Paul is telling, Arey, I am not telling you, Bible is telling. ये क्रिस्टी पॉल ऐसा बोल रहे हैं कि शब्बात का पालन करो। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कहता है। First step what? पहला कदम क्या? Honor your mother and father. अपने माता पिता का आदर करो। What is honoring mother and father? माता पिता का आदर करना क्या होता है? First come and sit in front of them, Baba. पहले आकर उनके सामने बैठो, Talk to them for some time. उनसे बात करो कुछ समय। Nowadays, how houses has become. आजकल घर कैसे बन चुके हैं? Everybody has got different room and everybody is lying in their own room. हर एक का अपना अपना कमरा हो गया है, अपने अपने पलंग पर लेटे हैं सब लोग। I am not an exception. और मैं इसके से अलग नहीं हूँ। I have also given separate room to children. मैंने भी अपने बच्चों को अलग कमरा दिया है They are having separate bed. और अपना अपना पलंग है सबका, They are having separate cell phone. अपना अपना फोन है सबके I पास। don't know this in this period that pressure is coming on mind and but do you remember the old time? आजकल के काल में ये दबाव आ चुका है, लेकिन अगर आप पुराने समय को आप याद करेंगे, Now I told this 2 days before in the class 2 also. दिन पहले भी मैंने जिक्र किया There will be इसका। one hall. सिर्फ एक हॉल होता है, We all will lie down line. 4-5 people in our family all line in one hall. और परिवार के सब सदस्य पंक्ति से उसी हॉल में पड़े रहते हैं। How many of you remember that time? कितने लोग ऐसे समय को याद Like that करते you, हैं? you have slept in your house. ऐसे भी अपने अपने घरों में सोए हैं हम। Yes, we all were sleeping in our house like that. हमारे घरों में हम ऐसा ही सोते थे। One hall, एक हॉल, everybody lying. सब लोग पंक्ति से वहां पड़े होते। Now, if somebody, parents are shouting at us, अगर कोई माता पिता हम पर चिल्लाते, no botheration. उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते थे। Evening time, we want to run to ground to play. शाम का समय हुआ, हम मैदान में भागते हैं खेलने के लिए। Nowadays, if we tell our children one word, अगर आजकल अपने बच्चों को एक बात भी हम गुस्सा कर दें, now that person goes and sits inside. और वह separate. जाकर एक कोने में ऐसे मुंह लटकाकर बैठ जाता है, Then we get scared. They're going to depression. That before and all, we don't know the word depression. और हम डर जाते हैं कहीं वह उसका मन का दबाव ना आ जाए। पहले जमाने में ये डिप्रेशन शब्द ही नहीं सुना था। They will shout like anything. ऐसे चिल्लाते थे, Nothing will affect us. कोई भी हम पर प्रभावित नहीं होता। We run and drink water from the common tap outside. और बाहर के नल से जाकर हम उसका पानी पी लेते थे। No health problem will come. कोई स्वास्थ्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। Nowadays you can drink. आजकल क्या आप पी सकते हैं? No. 20 rupees water bottle. 20 रुपए का जो बोतल आती है उसी को लेते हैं। My dear child of मेरे God, प्रिय परमेश्वर की संतान, today the family is mostly isolated. आजकल परिवार जैसे बंट गए हैं। Suddenly from the door bell will ring. अचानक दरवाजे की बेल बजती है, We go and open. हम जाकर खोलते हैं He has a cover Swiggy. और स्विगी से एक पार्सल आया है। He say, who ordered? हम पूछते हैं किसने ऑर्डर किया? No, I don't know. मैं नहीं जानता। Suddenly from inside voice is coming from outside. I only ordered. अचानक अंदर से एक आवाज आती है, मैंने ही ऑर्डर किया था। From our house only somebody has ordered. आपने ही घर से किसी ने ऑर्डर किया है उसको। And say, Papa, I will eat pizza today. और कहेगा पापा आज मैं पिज्जा खाऊंगा। Then what about rice, everything we made? और जो चावल दाल बनाई है उसका क्या?
पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, I don't like, आज मूड नहीं है, I don't feel like eating today. we say okay, हम बोलते हैं ठीक है। we can do like this before. क्या पहले जमाने में ऐसा कर सकते थे? After 10 minutes, 10 मिनट के बाद another one person is ringing bell. एक और बेल बजाता है। And who is that? वो कौन है? He says Zomato. वो कहता है जोमेटो से आया हूँ। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की what is संतान, God saying? परमेश्वर क्या कहते हैं? One day, एक दिन come and sit and honor your father and mother. Sit in front of them, pray in front of them, read the Bible in front of them. अपने माता पिता के सामने बैठो, उनके साथ बातें करो, तुम वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो एक साथ। Honor Shabbat. शब्बात का विश्राम दिन को पावन मानो। You are a holy person. तुम एक पवित्र मनुष्य You हो are a set apart person. और तुम अलग किए गए मनुष्य हो। Today, the person who doesn't follow Shabbat is telling, I am holy. आज जो शब्द का पालन नहीं करते वह भी कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ। Next point. अगला पॉइंट, See, today I am not giving message in points. आज मैं पॉइंट्स में नहीं दे रहा मैसेज, Because I read this chapter, I saw it is, you have to make your own points. और ऐसे मैंने जब ये पढ़ा तो ये जान पाया कि आपको खुद अपने पॉइंट्स बनाने Normally, पड़ेंगे। I give 3 points or 4 points. मैं हमेशा 3 या 4 पॉइंट में प्रचार करता हूँ, But I cannot give points today. लेकिन आज वो नहीं कर पाऊंगा। You write this chapter and put points for yourself and you follow and you become holy. और आप इन सब पॉइंट्स को जो भी मैं बता रहा हूँ तो आप नंबर देकर उसका पालन करो और पवित्र बन जाओ। Verse 4 says, और चौथे पद में यूं लिखा है, do not turn to idols nor make for yourself molded gods. तुम मूर्तों की ओर न फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर न बना लेना। Now, anyhow, we are not going in front of idols. हम तो मूर्ति के सामने नहीं झुकते। I see to that I am very careful. I am not in anywhere in the presence where the idol is there. और मैं ये बात देख लेता हूँ कि मैं कहीं भी किसी भी मूर्ति के सामने न खड़ा हो जाऊं। At the same time, उसी समय the Bible also says वचन में यूं भी लिखा है, some people keep money as idol. कुछ लोग पैसे को अपनी मूर्ति बना लेते हैं। Always money, 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 money. हमेशा पैसा पैसा पैसा। But we use it in different terms, different words. लेकिन हम उसे अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। We directly don't say money. हम सीधा पैसा नहीं कहते। You have to get a good career. तुम्हें अच्छा करियर बनाना है, You have to get a good job. तुम्हें अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। Yes, job is important. हाँ सही है, नौकरी मुख्य है, But you cannot become mad after job beyond a point. लेकिन तुम उस नौकरी के पीछे पागल नहीं हो सकते एक हद के ऊपर। Always money. हमेशा पैसा। And sometimes some people are like this, या कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं that they think everything I should get free. कि वो सोचते हैं कि सब बात मुझे मुफ्त में ही मिले। Your food, who should pay? तुम्हारे खाने के लिए किसको पैसा भरना है? Now some people think somebody should pay. कुछ लोग सोचते हैं दूसरों को भरना है। No, I am eating, I should pay. मैं खाता हूँ, मुझे ही उसका दाम I चुकाना। am learning, I should pay. मैं सीख रहा हूँ, मुझे ही उसका दाम चुकाना। I want a new shirt, I should pay and get. मुझे नई शर्ट चाहिए, मुझे उसका दाम देना है। We should come out of this free mentality. और इस मुफ्त में लेने की बात से बाहर निकलना है। Why all this pressure is coming? और क्यों ये सब दबाव आता है? Money, money, money. Money becomes पैसे, idol. पैसे एक मूर्त बन जाता है। If you keep money as idol, अगर आप पैसे को मूर्ति बनाकर रखेंगे, then you are not holy. तो आप पवित्र नहीं हैं। 5 to 8. Now Leviticus, God speaks about sacrifices. और 5 से 8 पद में बलिदान के बलि के बारे में परमेश्वर बताते हैं। 9 and 10. अभी 9 और 10, Please read verse 9 and 10. 9 और 10 अभी पढ़ेंगे। Yeah. फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। Now let us take for example, I am having a field. आप उदाहरण के लिए, अगर मेरा एक खेत है
Now the field I'm having, there are one field is mine. On to my left, there is a who having a field. On to my right, there is a who's having a field. अगर मेरा एक खेत है, मेरी बाईं ओर एक हिंदू जो है एक व्यक्ति उसका खेत है और मेरे दाईं तरफ एक मान का खेत है। Now, when I do the harvest, how I have to do? और जब मैं उस कटनी को करता हूँ मुझे कैसे करना है? On the sides, I should not harvest. और जो कोने कोने में है उसको नहीं काटना है। Second time, after the harvest, second time something grows, I should not go to और harvest. कटने के बाद अगर कुछ और उगता है उससे मुझे नहीं काटना है। How the other do the harvest? और मेरे पड़ोसी जो हैं वह कैसे कटनी करेंगे? They will harvest cleanly, fully. पूरी तरह से उस खेत का एक एक हिस्सा वह काट देंगे। If somebody is seeing the field, अगर कोई खेत की ओर देखता है what they will think? वह क्या सोचेंगे? This field is totally harvested. ये खेत तो पूरी तरह से कटनी कर दी The other one also totally और उस harvested. तरफ का खेत भी पूरी तरह से काट But दिया। this is different. लेकिन ये तो कुछ अलग दिख रहा है। They will say this is holy, this is set apart, this is a different field. वह कहेंगे कि ये पवित्र है, ये अलग किया गया है और ये विशेष खेत है। Why they are saying? क्यों ऐसा कहेंगे? They are able to see. वह देख पा रहे हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, what is holiness? पवित्रता क्या है? Obedience to word of God is holiness. परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना पवित्रता है। Verse 11 and 12. और 11 और 12 हम देखते हैं, You shall not steal or deal falsely with anybody. तुम चोरी न करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। Now God says, don't take anybody's items. परमेश्वर कहते किसी और के कोई भी वस्तु को तुम ना हड़पना। 1 rupee of other person or one small item of other person should not be in your house. किसी और का 1 रुपया भी या उसकी कोई भी वस्तु तुम्हारे घर में नहीं होनी चाहिए। Why? क्यों? We are holy. हम पवित्र हैं। I am holy, so I will not take others' items. मैं पवित्र हूँ इसलिए मैं दूसरों की वस्तु को नहीं लूंगा। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now verse 13 says, और 13 में यूं लिखा है, please read 13, 14, 13. एक दूसरे पर अंधेर न करना और न एक दूसरे को लूट लेना और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक न रहने पाए। If you have the money of another one person whole night, the next day you are an unholy person. अगर किसी और का पैसा पूरी रात तुम्हारे साथ रहता है तुम अब पवित्र बन जाते हो। Now many times I see कई बार मैं देखता हूँ in the Christian circle, मसीही समूह में some people get the money, never think of returning that. कुछ लोग उधार लेते हैं लेकिन कभी वापस देने की नहीं सोचते। They take the money, they just leave it. पैसे लेकर बस ऐसा ही छोड़ देते हैं। Next time they see, hello, how are you? They speak. Again, they don't talk about the money which they have to give back. अगली बार उस मनुष्य से मिलते हैं बस ऐसे ही नमस्कार कहते हैं लेकिन उस पैसे का जिक्र नहीं करते जो उन्हें वापस देना है। My dear child of मेरे God, प्रिय परमेश्वर की संतान, the moment the person has not returned the money, और जिस क्षण उसने पैसा नहीं लौटाया है he has come to the state of unholiness, वह एक अपवित्रता के स्तर पर आ गया है। but still going and saying hallelujah, लेकिन hallelujah. फिर भी जाकर हालेलुया कहते रहना। Now the world is giving different definition for holiness. और संसार कोई और ही अर्थ बताता है पवित्रता का। Now some people, कुछ लोग when they come and meet us, जब आकर हमसे मिलते हैं half the time they will keep their eyes closed, और आधा समय अपनी आंखों को बंद रखते हैं so that they want people to know that they are holy. ताकि लोग ये समझे कि वो कितने पवित्र हैं। So they keep shaking their head तो and ऐसे keeping their eyes आंखों को closed. बंद करके ऐसे सर को हिलाते And रहते they हैं have one timing. और एक समय होता है उनके पास। In that timing, they will be saying hallelujah. उस समय के बीच में वह बार बार हालेलुया कहते हैं। Not in prayer.
प्रार्थना में नहीं, Normally. बस ऐसे ही बात करते So समय। you're telling your incident, what happened to you last week. आप क्या बता रहे हैं कि आपके साथ क्या घटना घटी थी पिछले हफ्ते? Hallelujah. हालेलुया, Oh, hallelujah. हालेलुया। What is this? क्या है ये? You are trying to show you're holy? आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप पवित्र हैं? How you should show you're holy? कैसे आपको दिखाना है कि आप पवित्र हैं? Show to people Leviticus 19 fully, follow and show, that is holy. लाइव व्यवस्था का 19 अध्याय आप पालन करके दिखाओ कि तुम पवित्र हो। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, in our life, हमारे जीवन में we should first have a determination that I will not go against the word of God. हमें एक बात ठाननी है कि हम प्रभु के वचन के विरुद्ध नहीं करेंगे। Let us see verse 16. 16वां पद हम पढ़ेंगे अभी। Yeah. लूथरा बन के अपने लोगों में न फिरा करना और एक दूसरे के लहू बहाने की युक्तियां न बांधना, मैं Don't- यहोवा हूँ। Don't gossip. और तुम्हें ऐसे ही फिजूल की बातचीत नहीं करनी। If I am going and speaking about another one family to another one family, that one sentence I have become unholy. अगर मैं एक परिवार के विषय में जाके दूसरे परिवार से मैं बात करता हूँ तो वह मुझे अपवित्र बना देगा। That minute, उस ही मिनट में that split second, और उसी एक क्षण में we have become unholy. हम अपवित्र बन चुके हैं। Why? क्यों? The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है don't speak about other person. दूसरों के बारे में तुम ऐसे ही फिजूल बातें ना करो। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, just like that, telling something God told me to tell you, telling like that is also unholiness. और ऐसे ही मुंह से कह देना कि परमेश्वर ने मुझसे कहा तुम्हें ये बताने के लिए, वह भी अपवित्रता है। Many people in India are telling whatever they think under the name of prophecy. कई लोग हैं इस भारत में जो कुछ बताना चाहते हैं उसे भविष्यवाणी का नाम दे देते हैं। The name of God has been put to severe test at the 2019 election. और 2019 के जो चुनाव हुए उस समय प्रभु के नाम को व्यर्थ में लिया गया है। Now, one person has made a video and put और एक ने एक वीडियो बनाकर दिया है that two people, Christians who are top evangelists in India, और दो मशहूर जो प्रचारक हैं भारत में, they are saying about 2019 election of India, और वह 2019 के चुनाव के बारे में कह रहे हैं telling God told और ये कहते कि परमेश्वर ने कहा that God is going to change the center. कि परमेश्वर मध्य में वो बदलने वाले हैं सरकार को। Now, after this, when you look at it, how it is looking, और इसके बाद जब आप देखते हैं तो कैसे दिखाई पड़ता है, how our God's name is defamed. लेकिन हमारे प्रभु का नाम कैसे व्यर्थ में लिया गया है। Don't speak unnecessarily. You are not a holy person. और आप एक पवित्र मनुष्य नहीं रहते अगर आप परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, the list is very big. और ये सूची बहुत लंबी है। Okay, let me read another one verse. एक और वचन हम पढ़ेंगे। Okay, now verse 30 says, keep my Shabbat. और 30 में लिखा है कि तुम विश्राम दिन को माना करना। Verse 34, please read. और 34वां पद अभी हम पढ़ेंगे। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। Now, whatever verse I have not read, don't think that verse is not there. और जो भी पद अभी मैंने नहीं पढ़ा ये मत समझना कि उसका पालन नहीं करना है। I have already told you. मैंने पहले से बता दिया आपको।
I cannot explain all verses हर पद को समझाने के लिए समय because काफी नहीं, the list is big. क्योंकि सूची बहुत लंबी है Very few verses I am explaining. और उसमें से कुछ पद को ही मैं बता रहा हूँ। All if you fulfill, then you are holy. अगर इन सब पदों को, ये लय व्यवस्था का 19 अध्याय जो है, उन सब का पालन करोगे, तुम पवित्र बने रहोगे। Okay, one point I am going to say and finish. एक बात मैं कहकर मैं खत्म करूंगा। Verse 34 says, और 34 में यूं लिखा है, love the stranger or the neighbor as yourself. और अपने परदेशी से, अपने तुम पड़ोसी से अपना सा प्रेम रखो। Now my question to you is, अभी आपके सामने मेरा ये सवाल है, who is a Pardesi? परदेशी कौन है? Who's going to give me the answer? Who is Pardesi? Who is a stranger? परदेशी कौन है? Now, if suppose I am there, Pastor Benny is there, Sister Bhagya is there, Sister Nivedita is there. We all are brothers and sisters in Christ, correct? अगर मैं एक जगह पर हूँ, पास्टर बेनी है, सिस्टर निवेदिता है, सिस्टर भाग्या है, तो हम सब मसीह में कौन है? भाई बहन। We all are brothers and sisters. हम सब भाई बहन हैं। So I cannot become a stranger. तो मैं परदेशी नहीं बन सकता। Who is a stranger? परदेशी कौन है? A non-Christian. एक गैर मसीही। Clear? सही है। A non-Christian who is staying, और जो गैर मसीही है वहां पर, love that person as how you will love yourself. जैसे तुम अपने से प्रेम करोगे वैसे उससे भी प्रेम करो। Now my question today, अभी मेरा सवाल है ये आपके, in what way church is loving a non-Christian as how they are loving themselves? आजकल की कलीसियाएं कैसे दूसरे लोगों से वैसा प्रेम करती हैं जैसे अपने लोगों से, अपने आप से प्रेम करती हैं। Whatever help they are doing within themselves. और जो भी मदद करते हैं सिर्फ अपने अंदर, अपने ही लोगों के लिए करते हैं। Now during Corona time, कोरोना के समय पर they go and help. वह जाकर मदद करते हैं। I am giving 1 month provision for this family. एक महीने का राशन मैं इस परिवार को दे रहा हूँ। And the moment the person gives, और जिस क्षण उसे दिया जाता है, 7 cameras are there. और 7 कैमरा उसकी फोटो खींच रहे हैं। All angle they want to take the photo. सारे दिशा से उसकी फोटो खींचना चाहते And हैं। put everything in WhatsApp, YouTube, here, there, everywhere. और व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में उसका प्रचार करना चाहते हैं। You call this help? क्या ये मदद है सच में? Anytime we have given a new shirt to a beggar, क्या कभी भी किसी भिखारी को हमने नई शर्ट लेकर दी है? anytime we have given food, fresh food, good food to a poor person, क्या किसी दीन को कभी भी ताजा खाना खरीद कर हमने दिया है? always the old rice, हमेशा dal rice, tamarind rice, old rice. पुराने चावल, पुरानी दाल, पुराने जो इमली के चावल हैं, We go and give that. हम उसे जाकर दे देते हैं। So already he has a old rice from somebody else. और पहले से उसके पास वो पुराने खाना तो पड़ा है, That old tamarind rice or something. और वो पुराने इमली के चावल पड़े हैं उसके So पास। what is the option he has? तो उसके पास क्या चुनाव है? 3 people have given rice. 3 लोगों ने चावल दिए हैं। All 3 are old. सब तीनों चावल पुराने हैं। So he doesn't have any other option. तो उसके पास और कोई भी चारा नहीं। So he eats this rice first. पहले इस चावल को खाएगा। The salt is little less. और इसमें नमक तो बहुत कम है। Now he eats this rice. फिर इस चावल को खाता है। All bad. वो भी अच्छा नहीं है। Okay, now this is okay. Another one rice he is eating. एक और चावल को उठा के खाता है। Now this rice is better. ये थोड़ा बेहतर है। So he throws this 2 rice and eats this rice. और ये बाकी 2 को उठाकर फेंक कर तीसरे चावल को खाता है। I bought fresh 1 plate biryani for you. Anytime we have done it. क्या कभी हमने नई बिरयानी खरीद कर उस भिखारी को दिया है कि ये तुम्हारे लिए खरीदा मैंने? You need not do anything more than what you do for yourself. अपने आप के लिए जितना करते हो उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। Don't overdo. तुम ज्यादा मत करो।
No, I want to help the poor people. So I am buying 100 packet of biryani. I am giving everybody. No, 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 no. God did not say that. मैं दीन लोगों की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं 100 पैकेट बिरयानी लेकर मैं बांटने वाला हूँ। ऐसा नहीं If you करो। become poor because of that, God is not अगर responsible. उसके कारण तुम दीन बन जाओगे, उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर पर नहीं। I'll give you an example. आपको एक उदाहरण दूंगा। Definitely, nowadays you will go and buy fruits. आप जाकर जरूर फल खरीदते होंगे। Okay. Maybe for 1 week or 4-5 days, you buy 1 kilo fruit, 1 आप kilo 4-5 apple. दिन के लिए 1 किलो सेब आप लेते हैं। So it is 7 or 8 apples. 7 या 8 सेब आएंगे। Out of 8 apples, 8 में से take 1 apple एक सेब को लीजिए and go and give a poor man. और जाकर किसी दीन मनुष्य के हाथ में रखो। For my family, I brought this apple. मेरे परिवार के लिए मैंने खरीदा सेब को। You eat 1 apple. इसमें से एक सेब तुम खा लो। Enough. बस You have loved another one person like you. अपने जैसे दूसरे को प्रेम प्रकट किया है तुमने। One small help to other person. एक छोटी सी मदद किसी और की। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, whom you have to do, किसके साथ तुम्हें ऐसा करना है? you have to do a stranger. एक अनजान व्यक्ति, अजनबी के साथ। Now what we are doing, हम क्या करते हैं? we will never show ourselves in this way. ऐसे इस प्रकार से अपने आप को कभी प्रकट नहीं करते। But we will tell, लेकिन हम यूं कहते no, हैं, no, government is changed. Nowadays I cannot tell the gospel. Who told you? Who wants your tracts now? अभी सरकार बदल चुकी है, अभी मैं सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता। My dear child of मेरे God, प्रिय परमेश्वर की you संतान, need not give tracts, yaar. तुम्हें जाकर ट्रैक्स देने की जरूरत ही नहीं। You show yourself holy. You help the people. They will automatically come towards you. और तुम अपने आप को पवित्र प्रकट करो, दूसरों की मदद करो, वो खुद पे खुद आपके पास खींचे आएंगे। Note this statement very इस clearly. वाक्य को बहुत ही अच्छे रीति से तुम लिख लो। Your holiness is the gospel. और तुम्हारी पवित्रता ही सुसमाचार है। Your holiness is the gospel. तुम्हारी पवित्रता ही सुसमाचार है। You follow the word of God. That is gospel. तुम परमेश्वर के वचन का पालन करो, वही सुसमाचार है। I show myself like this to the world. अगर मैं अपने आप को इस प्रकार संसार पर प्रकट करूं, Will not people come towards you? क्या लोग तुम्हारी तरफ नहीं खींचे आएंगे? Nowadays, the way what we are showing, people will run away from us. आजकल जिस प्रकार अपने आप को हम दिखाते हैं, लोग भाग जाएंगे। You wear white and go. आप सफेद वस्त्र पहनकर जाओ, Now he sees. वह तुम्हें देखता है। They think, oh, अरे ये विधवा है यार, we should not go in front of this girl. वह सोचेंगे कोई विधवा आ रही है, हमें इसके सामने नहीं जाना है, We will go other way. हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। Now what holiness we are thinking, world is running away from us. और जिस पवित्रता को हम समझते हैं, संसार उसे दूर भागता है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, how did Abraham tell the gospel? अब्राहम ने सुसमाचार किस प्रकार बताया था? Whenever he is traveling, और जब भी वह यात्रा में होते, in that village there will be a lot of people. उस गांव में बहुत से लोग होते थे। Now Abraham's crowd is around 2,000 people is there. अब्राहम के साथ 2000 लोग थे। So every day they will make food, roti, all big stove and a lot of things they'll make. इसलिए बड़े बड़े बर्तनों में इतना खाना बनता था रोज। The local people will come and ask food. और जो वहाँ के लोग थे, वो आकर खाना मांगते। They say yes, we will give food. और वह कहते हाँ, हम खाना देंगे। But you have to listen to us after that 1 hour. लेकिन उसके बाद तुम्हें 1 घंटा हमारी बात को सुनना पड़ेगा। They eat the food वह खाना खाते। and Abraham will preach for the men. उसके बाद अब्राहम पुरुषों से कुछ बताते वह, And Sarah will preach for the women. और जो सारा थी वह स्त्रियों को सिखाती। Many people were converted. ऐसे बहुत से लोग वह बदल गए, परिवर्तित हुए। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, love the stranger as yourself. और उस अजनबी से अपना सा प्रेम रखो। Our help now what we have done for the common man. और हमने साधारण मनुष्य के लिए क्या किया है?
Now, some churches are getting crores and crores of और rupees कुछ कलीसियाओं में कितने ही करोड़ों रुपए आते हैं outside their church. उस कलीसिया के बाहर ही। Just give buttermilk free of cost to all the people who are passing. और जो भी वहां से गुजरता है उनको मुफ्त में कुछ लस्सी ही पिला दो। Just one glass of बस buttermilk. एक गिलास का लस्सी। It is very hot. बहुत गर्मी है Take the permission from corporation. और कॉर्पोरेशन से उसका अनुमति ले लो। Just one glass of buttermilk. बस एक गिलास बटर How लस्सी much का। you will spend, Baba? उसके लिए कितना खर्चा One करोगे? day, whole day you give for 100 people, 500 rupees you will spend. अगर एक दिन में 100 लोगों को देखते हो तो 500 रुपए खर्च होंगे। Give. दे दो। Will you put an umbrella in front of your church or somewhere in the road so that common people can come and stand in the तो shade? क्या कोई छाता तुम तैयार करोगे ताकि जो लोग गर्मी से तंग हैं आकर कुछ देर उसमें विश्राम कर सके? We want to go in car. और हम गाड़ियों में जाना चाहते We हैं want to be in shade. और हम बहुत ही छाया में रहना चाहते What हैं। about other person? लोगों के बारे में क्या? Are we loving that क्या person? हम उससे प्रेम करते हैं? My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान। who is a neighbor? और पड़ोसी कौन है? Who is a stranger? कौन है वो अजनबी या परदेशी? He is not our brother in Christ. वह हमारे मसीह में भाई नहीं है, He is a non-Christian. वह एक गैर मसीही है। Follow this and he will see that you are different, you are set apart person. और इन सब बातों का पालन करो, वो देख पाएगा कि तुम अलग किए गए मनुष्य हो। We are taking Holy Communion. और हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, पवित्र इसमें मेज में भाग लेते हैं। It does not mean I am sinless. इसका मतलब ये नहीं कि मैं निष्पाप हूँ। I lead a life which is set apart life. मैं ऐसा जीवन व्यतीत करता हूँ जो अलग किया गया है। What we hold in our hands, हमारे हाथ में जो हम पकड़े रखते हैं, it is called Holy Bible. इसे पवित्र बाइबल कहा गया है। Why it is called Holy Bible? क्यों इसे पवित्र बाइबल कहा गया? You will find the holiness of God inside. क्योंकि इसमें आप परमेश्वर की पवित्रता को देख पाएंगे। And after seeing the holiness of God, और परमेश्वर की पवित्रता को देखने के बाद we have to lead a set apart life. हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना है जो अलग किया गया है। How many of you say, I have understood holiness very clearly? आप में से कितने लोग कहते हैं कि मैंने पवित्रता का सही अर्थ समझ लिया है? Praise Jesus. प्रभु यीशु मसीह की ही जय हो। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, can we ask God, God, make me holy today? क्या हम परमेश्वर से पूछेंगे कि प्रभु आप मुझे पावन बनाओ? Shall we close our eyes? क्या अपनी आंखों को बंद करेंगे? Obedience to the word of God is holiness. परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन ही पवित्रता है। Following Shabbat is holiness. और विश्राम दिन को मानना ये पवित्रता है। Honoring your father and mother is holiness. अपने माता पिता का आदर करना ये पवित्रता है। Not telling lies is holiness. झूठ ना बोलना ये पवित्रता है। Not taking money in a wrongful way from others is holiness. किसी के पैसे को ठगना ना ठगना गलत रीति से यही पवित्रता है। Not having lust for money is holiness. पैसे का लालच ना रखना यही पवित्रता है। The list is very big, my dear child और of God. सूची बहुत लंबी है मेरे प्रियो। The question is, अभी सवाल ये है, after reading the list fully, क्या पूरी सूची को पढ़ने के बाद you tell whether you are holy or not. आप बताइए कि क्या आप पवित्र है या नहीं? Are we holy according to the word of God? क्या हम प्रभु के वचन के मुताबिक पवित्र हैं? Not wearing a different type of shirt, ये नहीं कि अलग रीति से शर्ट पहनना different way of talking. और अलग रीति से बात करना No. नहीं। Is your life matching with the word of God? क्या आपका जीवन प्रभु के वचन से मिलता है? Then God will say you are holy. तब परमेश्वर कहेंगे तुम पवित्र हो।